Hello. Yeah. Good morning. Good morning, everyone. Yes, good morning, Aman and Prem. How are you? Good morning, ma'am. Good, ma'am. How are you? I'm good. So, कैसा चल रहा है आप लोगों का? कुछ पढ़ाई कर रहे हो? सेल्फ स्टडी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? And why you joined so late? मतलब it's already 11:33 and only two of you have joined the class. मैम कोई क्लास नहीं हुई ना आज, इसलिए। आज सुबह से कोई क्लास नहीं हुई? नहीं मैम, हुई थी ओनली वन क्लास शिखा मैम की, उसके बाद नहीं हुई सब। अच्छा, तो फिर बट क्लास तो ज्वाइन करेंगे ना बाकी लोग? पता नहीं, लिंक तो मैंने भेज दिया था 11:15 पे ही। अपने ग्रुप में मैसेज डालो कि ज्वाइन करें। यस मैम। हम्म। Okay. Recording in progress. Yes, what we have to do is, see, we are starting line clipping algorithm now. The document is being shared to you. हमने line clipping algorithm start किया हुआ है. उसमें what we have studied in line clipping, we have covered one algorithm, that is Cohen-Sutherland. Who will tell me what is Cohen-Sutherland and on what principle it is based upon? Simple. First of all, tell me what is line clipping. Line clipping is actually a process of, see, we have a rectangular window. Can you all see that diagram? This is a rectangular window and we have several lines passing through the window, or there may be some lines which is around the window. Line clipping is a process of determining certain part of the line segment which is inside your rectangular window, that means which is inside your viewing area. ठीक है? तो you have to reject or you have to partially clip some of the line segments which are visible inside your rectangular window or your viewing area. So this is a process of determining that which part of the line is to be rejected and which part of the line segment is to be displayed. ठीक है ना? तो line clipping ये process है. अब आपको पढ़ना है कि what are the algorithms that we adapt in order to determine कि what are the line segments that we have to discard and what are the line segments that we have to truly accept, or there may be some line segment that we need to reject. ठीक है? कुछ पार्शली विजिबल होंगी, कुछ पूरी रिजेक्ट होंगी और कुछ पूरी पूरी एक्सेप्टेड होंगी. तो हमने कोहन सदरलैंड पढ़ा था. कोहन सदरलैंड किसी को याद है? व्हाट इज कोहन सदरलैंड एल्गोरिथम? Yes, any one of you want to tell about Cohen Sutherland? Cohen Sutherland algorithm, we have covered. The first thing that you have to remember is that it is a line clipping algorithm which is applicable only for rectangular windows. मतलब कि ये कहता है कि जो आपका पॉलीगन है ना वो रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए. ठीक है? उसको फिर आप उसकी क्लिप एज को आप एक्सटेंड करके उसके जो रीजन है उसको 9 रीजन्स में कन्वर्ट कर देते हो. याद आ रहा है कुछ कुछ? हम अपनी रेक्टेंगुलर विंडो को एक्सटेंड करते हैं लेफ्ट,
लेफ्ट वाली एज को एक्सटेंड किया, टॉप एज को एक्सटेंड किया, राइट एज को एक्सटेंड किया एंड बॉटम एज को एक्सटेंड करके वी डिवाइड द कंप्लीट रीजन इनटू 9 रीजन्स। और हर एक रीजन को हम क्या दे रहे थे, एक बिट कोड असाइन कर रहे थे। बिट कोड किस फॉर्म में असाइन कर रहे थे, TBRL, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। याद आ रहा है कुछ कि सब भूल भूल चुके हो? यस क्लास, कुछ याद आ रहा है कोहेन सदरलैंड? Yes, class. Do you able to recall what we have studied in Cohen-Sutherland? This is the diagram of Cohen-Sutherland. We have done this in Cohen-Sutherland algorithm. हमने क्या बोला, पहली चीज तो आपको जो याद होनी चाहिए वो क्या, कि ये कौन सी विंडो के लिए काम करता है। It only work for a viewing area जहां पर आपकी जो विंडो है वो रेक्टेंगुलर शेप में हो। आपका जो पॉलीगन है जिसमें आपको लाइन सेगमेंट्स को क्लिप कराना है, दैट शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप। और फिर वो उसकी विंडोज को एक्सटेंड करके, एजेस को एक्सटेंड करके उस पूरे रीजन को जो आपका क्लिप रेक्टेंगल है उसको डिवाइड करता है 9 बिट कोड्स में। फिर इट विल यूज द प्रोसेस कि अगर दोनों एंड पॉइंट्स 0 है तो वो ट्रूली एक्सेप्टेड है ना। अगर आपका लॉजिकल एंड इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इट इज ट्रिवियली रिजेक्टेड। बट इफ इट इज इक्वल्स टू 0 तो आप उसमें फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो। याद आ रहा है कोहेन सदरलैंड? यस क्लास। यस मैम। तो ये आप हमने कोहेन सदरलैंड पढ़ा है। वी हैव डन द न्यूमेरिकल आल्सो एंड कोहेन सदरलैंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। नाउ इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये बहुत इजी भी है। ठीक है, मैं नोट्स आपको सबको शेयर कर दूंगी जल्दी ही। देखो ये सबका मेरे पास पिक्चर्स तो है बट आई जस्ट नीड टू मेक अ PDF। जैसे यूनिट 1 का PDF डाला था, यूनिट 1 का PDF सबने डाउनलोड कर लिया है? पिछली बार भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो क्लासरूम पे सारे PDFs करप्ट हो गए थे, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो मैं डाल रही हूँ वो डाउनलोड कर लो साथ साथ। ठीक है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है प्लीज गेट इट डाउनलोडेड। और कोहेन सदरलैंड हम पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज पिंग मी पर्सनली। ठीक है, सो दैट आई कम टू नो कि आपको कोहेन सदरलैंड नहीं आया। आप उसको एक बार रीड करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ इन टुडेज क्लास we are starting a new line clipping algorithm which we called as Cyrus-Beck. Now what is Cyrus-Beck line clipping algorithm? Let me, okay, Cyrus-Beck is again a new line clipping algorithm, but it is a better version than Cohen-Sutherland. Cohen-Sutherland में हमारे पास एक ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक क्या था कि it is only applicable for a viewing area जहां पर आपका जो विंडो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। सबको शेयर हो गया Cyrus-Beck टेक्निक वाला डॉक्यूमेंट? अब आपका जो Cyrus-Beck लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसमें क्या है कि जैसे वो था कोहेन सदरलैंड आस्क फॉर रेक्टेंगुलर विंडो, बट जो Cyrus-Beck है कैन वर्क फॉर आर्बिट्री कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन इन 3D स्पेस, और इट कैन वर्क फॉर एनी ऑफ द पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो, उसकी कैसी भी शेप हो, जरूरी नहीं है कि उसकी शेप रेक्टेंगुलर ही हो। इट इज नॉट आस्किंग कि आपका जो विंडो है वो रेक्टेंगुलर हो, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट कुड बी ऑफ एनी शेप। लेट सपोज मैंने ये पॉलीहेड्रन ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ कुछ भी, जैसे ये है, इसके अगेंस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज Cyrus-Beck is again is one more line clipping algorithm that is applicable for any arbitrary convex polygon in the 2D plane and it can work for any 3D space also. ठीक है, अब इसमें ये एक और चीज क्या इंट्रोड्यूस हुई है Cyrus-Beck में, Cyrus-Beck has introduced parametric clipping. What is parametric clipping? अब इस चीज को हम समझते हैं with the help of a diagram. Now just focus your eyes in this diagram. इस diagram को ध्यान से देखो। अब इसमें हो क्या रहा है, this is your clip edge.
लेट सपोज ये पूरा ना आपका ये डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम तो बनाया नहीं हुआ है, ठीक है, ये ना पूरी एक विंडो है, कुछ भी कोई भी विंडो कोई भी पॉलीहाइड्रन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। Now let's suppose this is your polyhedron and we are looking up for a particular clip edge. इस particular clip edge को देखो ध्यान से. We will draw this diagram on all the clip edges. अब आपको एक clip edge के साथ काम करके दिखाया हुआ है. What is the thing we are doing? Now just focus here. This is one of the clip edge and this is a line segment which is initially having a point P0 and P1. Please draw this diagram. First of all, draw this diagram. Everyone, take out your notebooks. Yes. Welcome, Kunal, to the class. Very first class you are attending. Hanji. Kunal, roll number 21. You are attending the very first class. How come you come to know कि मैं पहले भी आया हूँ। नहीं, I have not marked you. आपकी अटेंडेंस सारी 0 है। पहले कब आए हो आप? मैं आया था, मैं तो कितनी ज्वाइन करी है मैंने पहले भी क्लास। कितनी क्लासेस ली है आपने? मुझे याद नहीं है। I have the screenshot. ठीक है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा हुआ दीपक ने, मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से. But according to me, you have not attended a single class. Please, अगर आपको CG समझ में आ चाहिए तो प्लीज अटेंड द क्लासेस. अब मोस्टली हम सेकेंड यूनिट भी कवर करने को हो गए हैं और आप अब क्लास ले रहे हो. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स और इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है. जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो ड्रॉ करना है आपने. नाउ ड्रॉ दिस लाइन सेगमेंट. ये आपकी क्लिप एज है, ठीक है, and this is the line segment P0 P1 which is intersecting at this point. इस clip edge को intersect कर रही है. Now you have to first of all draw a normal vector. Normal पता है ना क्या होता है? Normal vector perpendicular to this line segment. ये जो आपकी clip edge है ना, इस पे आपने एक normal draw किया, that is a outward normal NI which is perpendicular to this line segment. ठीक है, इतना समझ में आया कि आपने एक क्लिप एज ली, इस एज का नाम है EI, इस एज का नाम है EI. दिस इज अ लाइन सेगमेंट P0 P1 and this is a outward normal we have drawn on the edge EI and I. इतना नोटेशन क्लियर है? Now you have taken any point PEI on the edge EI. ये जो edge है ना आपकी EI, इस पे कोई भी पॉइंट आपने ले लिया जिसका नाम है PEI. तो आपके टोटल कितने पॉइंट हो गए? एक पॉइंट हो गया P0, एक है आपका P1. P0 and P1 are the end points of your line segment. PEI is a point which is on the edge EI. Now from this point PEI you have drawn 3 vectors. One is to P0, one is to P1 and one is to the point which is intersecting by the line P0 P1. 3 vectors you have drawn. सबसे पहले देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. What you are doing, what the diagram is showing to you. देखो, the diagram is saying that there is a single edge EI of the clip rectangle and that edge outward normal कौन सा है? NI, ठीक है, as well as the line segment P0 to P1 that must be clipped to the edge. ठीक है, मतलब आप ये मतलब कि intersect कर रही है तभी आप इसको clip करोगे ना. अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो साइरस बेक है, साइरस बेक always make use of parametric equation. पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको अगर थोड़ा सा नॉर्मल सेंस में समझाऊं कि एट टाइम T0 आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एट टाइम T1 आप यहाँ पे पहुंच गए P1 पे. तो आपको करना क्या है? इसके अंदर आप एक पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज कर रहे हो. PT equals to P0 plus P1 minus P0 ब्रैकेट में T. This is the parametric line equation you are using in order to determine the value of T.
T is the point time at which the line is intersecting the clip edge. आपको करना क्या है, ये अगेन आपकी लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम है ना। आपको निकालना क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने कोहन सदरलैंड में क्या किया था, कोहन सदरलैंड में आपने क्या किया था, आपने फाइंड आउट किया था कि कौन सी लाइन जो है वो आपको रिजेक्ट करनी है, कौन सी लाइन एक्सेप्ट करनी है, व्हाट आर द इंटरसेक्शन पॉइंट, व्हाट आर द पोर्शंस ऑफ द लाइंस दैट यू हैव टू रिजेक्ट इट, दैट यू हैव डन इन कोहन सदरलैंड। कोहन सदरलैंड में there was a limitation that you can only work with rectangular windows. Now उस limitation को दूर करने के लिए, moreover in Cohen Sutherland you were also using some of the operation that logical and perform कर रहे थे आप, है ना। बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, बार बार इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे थे, याद है कितनी बार हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले थे, फिर उनको रिजेक्ट किया था। तो उसमें there is a very long process of determining the actual intersection point. उन सारी चीजों को ओवरकम किया है साइरस बेक ने। साइरस बेक is again one of the important line clipping algorithm that is applicable for any polygon. It is not like it is only for rectangular window, it can work for any convex polyhedron. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, आप पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज कर रहे हो, which is a parametric equation pt equals to p naught plus p1 minus p naught t. यहाँ पे t की जो वैल्यू है, t is a time interval where you are traversing from p0 to p1 and t की वैल्यू will range from 0 to 1. ठीक है, इतना सबको समझ में आया है? This is just a basic introduction. Yes class, इतना क्लियर हुआ है कि हम कर क्या रहे हैं? Yes class, am I able to explain you what we are starting to do? अमन, मनीष, प्रेम, कुछ क्लियर हो रहा है? जी मैम। ओके, हाँ जी सरिता, कुछ क्लियर हो रहा है आपको? Yes, ma'am. Have you drawn the diagram? डायग्राम ड्रॉ किया है कि नहीं किया है? No, ma'am. क्यों नहीं किया है आपने? ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, अब आपने देखना है कि ये जो पॉइंट है PEI, दिस इज अ आर्बिट्री पॉइंट जो आपने क्लिप एज पे लिया है, ठीक है, ये आपकी एज है। इस पॉइंट से आपने 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एक ये वाला जो P0 की तरफ है, एक ये वाला जो P1 की तरफ है, और एक आपका वेक्टर है जो आपके जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको टच कर रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर साइरस बेक में आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आप डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हो क्या? अभी पहली बात तो आपने जो आर्बिट्री पॉइंट पिक किया ना PEI, उससे आपने 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए, उन 3 वेक्टर्स पे आपने वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज P, दिस इज द वैल्यू, एक मिनट, PT minus PEI. Consider the 3 vectors PT minus PEI from the point PEI to 3 designated point on the line segment. यहाँ पे 3 पॉइंट, डायग्राम को देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस वाज योर डायग्राम। PEI मैंने बोला कोई भी पॉइंट ले लो। अब आपने एक वेक्टर है जिसको आप बुला रहे हो PT minus PEI, और आपने क्या किया, 3 वेक्टर्स लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, एक P0 की तरफ, एक P1 की तरफ, और एक आपने अपने पॉइंट जो भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी तरफ। नाउ यू हैव डन द डॉट प्रोडक्ट, जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया था उस नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला उस वेक्टर के साथ। उस पूरे डॉट प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि आपका पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द एज है। यहाँ पर NE डॉट PT minus PEI if it is less than 0, then that means आप अंदर की तरफ हो, that means you are inside half plane. अगर जो डॉट प्रोडक्ट है नॉर्मल का with the vector PT minus PEI is greater than 0, that means you are outside the half plane. And अगर जो डॉट प्रोडक्ट है it is equals to 0, that means you are on the edge. ठीक है, अभी आई बिलीव कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट स्लोली जब आप प्रोसीड करोगे इसके एग्जाम्पल की तरफ,
और जब आप इसका एक्चुअल वर्किंग देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने बोला कि जो साइरस बेक है वो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब उसमें आपने इक्वेशन ली PT इक्वल्स टू P0 प्लस P1 माइनस P0 T, जहाँ पे P0 और P1 क्या है, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। आपने एक एज ली EI, एक पॉइंट लिया PEI, और उस पॉइंट से 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए जिसको आप बुला रहे हो PT माइनस PEI, एंड हर एक पॉइंट पे आपने उनका प्रोडक्ट निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल का अपने वेक्टर के साथ, और उस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर रहे हो कि अगर ये NE डॉट PT माइनस PI लेस देन 0 है तो आप अंदर की तरफ हो, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस यू आर आउटसाइड, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू 0 दैट मींस यू आर ऑन द क्लिप एज। नाउ अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने कौन सी इक्वेशन को यूज किया, यू आर यूजिंग NE डॉट PT माइनस PI इक्वल्स टू 0 एंड यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ PT। आपको पता है कि PT की वैल्यू क्या है, PT इज इक्वल्स टू P0 plus P1 minus P0 T. This is the value of the parametric equation at time interval T. Now इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, yes, all of you just write it down. आप लिखो NE dot PT minus PEI equals to 0 और PT की वैल्यू को पुट करो. When you put the value of PT here, it is P0 plus P1 minus P0 T and this is minus PEI. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा NE P0 प्लस NI P1 माइनस P0 इसको सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग, सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन किया एंड जो यहाँ पर था ना, आपने यहाँ पे NI कॉमन ले लिया P0 और PEI से, और यहाँ पे T की वैल्यू निकाली है बेसिकली, और P1 माइनस P0 को रिप्लेस कर दिया D से। D इज इक्वल्स टू P1 माइनस P0, तो T की वैल्यू क्या आ गई, NI स्क्वायर ब्रैकेट में P0 माइनस PEI डिवाइडेड बाय माइनस NID। ये आप सबका आया है कि नहीं आया है? इतना सबका आया है? आर यू सॉल्विंग दिस इक्वेशन? आपने ये वाली इक्वेशन पिक की, उसमें PT की वैल्यू को पुट किया एंड यू हैव सिंपली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ T। इतना क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. Are you class solving this equation or not? Yes, ma'am. अब यहाँ पर आपने करना क्या है, एक्चुअली व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ T, बिकॉज आप T की वैल्यू से ही डिटरमाइन करोगे कि आपको रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। अब नेक्स्ट थिंग आपको करनी क्या है, अब यहाँ पर देखो T की वैलिड वैल्यू कब आएगी, जब आपका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 हो गया तो इट इज अ फॉर्म एरर आ जाएगा ना, रन टाइम एरर आएगा कि डिवाइडेड बाय 0, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। उसके लिए आपका जो NE है, सॉरी NI है, that is your normal vector, should not be equals to 0, and your D क्या था आपका, D is P1 minus P0, P1 minus P0 should not be equals to 0, that means P1 should not be equals to P0। तो मतलब कि जो पूरी वैल्यू है NI dot D should not be equals to 0। Now हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे in order to find out the value of T। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप आगे की वैल्यू, आगे के उसको समझोगे। देखो जैसे ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब आपको ये आपका विंडो है, ये आपकी सारी लाइन सेगमेंट्स है। पहली लाइन सेगमेंट ये वाली है, this is the second line and this is the third line. You have to find out that what are the line segments that you have to reject, what are the portions of the line segment that you have to accept।
ठीक है। अब यहाँ पे जो PL PE ये जब लिखा हुआ है ना, ये आपको डिटरमाइन करना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। और PE का मतलब है पोटेंशियली एंटरिंग। PE स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखो, ईच इंटरसेक्शन इज कैटेगराइज्ड एज पोटेंशियली एंटरिंग और पोटेंशियली लीविंग द क्लिप रेक्टेंगल, ठीक है। और जो वैल्यू T की वैल्यू है ना, वो रेंज करेगी 0 से 1 के बीच में। आपको करना क्या है, हर एक क्लिप एज के लिए, फॉर एवरी क्लिप एज, ये आपकी क्लिप एज है 1 2 3 4, एंड फॉर एवरी लाइन सेगमेंट आपको वैल्यू निकालनी है T की। T की वैल्यू निकालने के लिए आपने फॉर्मूला निकाल दिया, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर T। अब आपको करना क्या है, आपने में पॉइंट्स पहले, सबसे पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करो, PE या PL। अगर PE जो है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर तो आपका NE.D जो आप निकालोगी, NE.D लेस देन 0 होता है तो पॉइंट आपका PE आएगा। PE का मतलब कि T इज पॉजिटिव, एंड NE.D अगर आपका ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स आपका पॉइंट जो होगा उसका नाम होगा PL, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका नाम होगा PL, एंड दैट मीन्स योर T इज नेगेटिव। ये सारी चीजें भी अभी क्लियर होंगी when you will consider this table. Now इस टेबल को ध्यान से समझो। सबसे पहले ये टेबल हमें समझनी है in order to find out कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, these are the intersection point, ये all these are the intersection point of your line segment with the clip edge. इन इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम आप PE रखोगे या PL रखोगे, है ना। उसके लिए you have to understand this table. Just understand this table. Now draw this table first of all. The first column is clip edge, the second column is the normal NI, third is the point PEI, fourth is P0 minus PEI, and fifth is जो आपका T की वैल्यू थी ना, T is equals to NI multiply में P0 minus PEI divided में minus NI dot D. T is equals to NI multiply में P0 minus PI divided with minus NI dot D. So these are the 5 values that you are computing. Actually, you are computing all the values. Normal, P0 minus PEI, है ना, ये सब values compute कर रहे हो। तो सबसे पहले सारी clip edge को ले लो। Let's suppose आपका जो rectangle है, ये आपका rectangle है, let's suppose ये है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर आपने ले लिया, जो भी आपने लिया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप ड्रॉ करते हो, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये लेट्स सपोज दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज x min, दिस इज x max, दिस इज y min, दिस इज y max। अगर आप ऐसे लेके चलो, ठीक है। तो आपने 4 क्लिप एज ले ली, जिसमें लेफ्ट में x min, राइट में x max, बॉटम में y min वाला कोऑर्डिनेट है आपका, और टॉप में y max है। ये आपको x min, x max, y min, y max क्लियर है। मतलब कि जो आपकी लेफ्ट एज है ना, उसको तो आप x min से आइडेंटिफाई कर रहे हो। जो राइट एज है रेक्टेंगल की, जो भी आपका क्लिप एज है, लेट्स सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसकी x min है, दिस इज x min, इसको आपने लिया नॉर्मल जो इस पे ड्रॉ करोगे, क्योंकि x min लेफ्ट में होता है तो आपका x कोऑर्डिनेट -1,0, x max इज मैक्स मतलब राइट में, मैक्सिमम वैल्यू x की राइट में होती है ना, तो राइट में x पॉजिटिव होता है तो 1,0। बॉटम में y इज नेगेटिव, जो नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इट इज 0,-1, और टॉप में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इट इज 0,1। ये वैल्यूज कैसे आई है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू। हमने किया क्या, पहले तो हम जो अपनी क्लिप एज है ना, उसको x min, x max, y min, y max, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेफ्ट वाली एज पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि लेफ्ट जो होता है वो x नेगेटिव होता है, तो वहां पर -1,0 नॉर्मल की वैल्यू हो गई। राइट में x इज पॉजिटिव तो 1,0, बॉटम में y इज नेगेटिव, दैट मींस इट इज 0,-1, एंड टॉप में जो वैल्यू होती है y की वो
पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स इट इज 0,1। ये नॉर्मल की वैल्यू कैसे आई है, ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है एवरी वन ऑफ यू? Yes, ma'am. यस, सबको क्लियर हो रहा है? प्रेम, मनीष, हाँ जी क्लियर हो रहा है कि सर सबके ऊपर से जा रहा है? सरिता कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. अब देखो Ma'am, एक बहुत बार और इंटरेस्टिंग repeat आने वाला है। अब इसमें हमने किया क्या, जो आपका पॉइंट है, अब लेफ्ट एज पे जो पॉइंट होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्स मिन कॉमा वाई। राइट एज पे जो पॉइंट है उसको एक्स मैक्स कॉमा वाई, जो बॉटम एज पे है दैट इज एक्स कॉमा वाई मिन, और जो टॉप एज पे है उस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई मैक्स। ठीक है, पी नॉट माइनस पीई आई, पी नॉट के पॉइंट कौन कौन से है, एक्स नॉट वाई नॉट। पी नॉट के जो पॉइंट होंगे वो कौन से होंगे, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो उसको आप कैसे लिखोगे, पी एक्स की वैल्यू को पहले माइनस करोगे, दैट इज एक्स नॉट माइनस एक्स मिन, वाई नॉट माइनस वाई। सिमिलरली एक्स नॉट माइनस एक्स मैक्स, वाई नॉट कॉमा वाई। सिमिलरली यहाँ पर लिखोगे आप एक्स नॉट कॉमा एक्स, sorry x naught minus x comma y naught minus y min, and here also x naught minus x and y naught minus y max। तो ये आपने जैसे p naught की वैल्यू क्या थी, x naught comma y naught, और PEI की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको आपने माइनस करके इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, और जब आप t में वैल्यू पुट करोगे, तो t में वैल्यू पुट करने के बाद आप खुद देखो, ये एक्स मिन से ये जब पी नॉट माइनस पीई लिखोगे तो यहाँ पर ये देखो एन, ये ना बेसिकली आपने टी की वैल्यू पुट करी है तो एक्स की फॉर्म में पुट करी है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स मिन, और यहाँ पर जो आपका ये था डी, डी क्या था आपका, डी क्या होता है, P1 माइनस पी नॉट होता है ना डी, P1 D इज इक्वल टू पी नॉट माइनस P1, तो यहाँ पर पी नॉट माइनस P1 दैट इज x1 माइनस एक्स नॉट। अभी आप y के कोऑर्डिनेट लेफ्ट एज के लिए नहीं ले रहे हो, सिमिलरली राइट एज के लिए भी y के कोऑर्डिनेट नहीं लोगे, बॉटम और टॉप एज के लिए x के कोऑर्डिनेट्स नहीं लोगे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से सारी t की वैल्यू पुट कर दी। आपको इस टेबल को समझाने का मेरा मतलब क्या है, नॉर्मल निकालना आना चाहिए कि नॉर्मल की वैल्यू क्या है। अब आपको करना क्या है, आपने पहले तो ये टी की वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सारी वैल्यूज पुट कर दी आपने कि पी नॉट माइनस पीई के लिए एक्स नॉट माइनस एक्स मिन डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। ये माइनस का साइन आप देख लो किसके इसके लिए आएगा, लेफ्ट एज के लिए माइनस आएगा और बॉटम एज के लिए माइनस आएगा, और यहाँ पर ये देखो ये माइनस एन आई कॉमा डी है ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस नॉर्मल वाले इस वैल्यू से, तो ये वाली नेगेटिव डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर वाला माइनस कैसे आया है, ये जब आप इसमें इक्वेशन सारी वैल्यू पुट करोगे तो उससे आपको सॉल्व होगा। बेसिकली आपको करना क्या है, हर एक लाइन सेगमेंट के लिए आपने, जैसे ये डायग्राम था यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले पिकअप दिस लाइन सेगमेंट, लाइन नंबर 1, ये वाली जो लाइन नंबर 1 है इसका मैंने केस समझाया हुआ है यहाँ पर, दिस इज योर लाइन नंबर 1। ठीक है, तो आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए और बी, इस पे निकालना है कि आपकी जो ये पीई है या पीएल है, दैट इज इट इज पोटेंशियली एंटरिंग और पोटेंशियली लीविंग। ठीक है, तो उसमें आप करोगे क्या, आपको पता है कि ये वाली एज कौन सी होती है, दिस इज योर लेफ्ट एज। लेफ्ट एज के लिए आप टेबल में देखो, लेफ्ट एज के लिए नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, -1,0। ठीक है, तो जब आप इस -1,0 को d से मल्टीप्लाई करोगे, और d पता है आपको क्या है लेफ्ट एज के लिए, यू ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, इट इज x1 माइनस एक्स नॉट। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू ऑलवेज नो, जब आप -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा विच इज लेस देन 0। और जब आपको पता है कि जब आपका ये वाला, यहाँ मैंने आपको बताया था
कि when your ni dot d is less than 0, that means your point is potentially entering, PE. जब ni dot d is less than 0, that means you are potentially entering. तो यहाँ पर जो A था इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर आपने PE लिख दिया। और अब इस डायग्राम में देखो, अब B के लिए देखो, B जो इंटरसेक्शन पॉइंट B है वो कौन सी एज को टच कर रहा है? टॉप एज को। टॉप एज के लिए ni की वैल्यू क्या है? 0,1। 0,1 मतलब कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। जब आप इसको d से मल्टीप्लाई करोगे, d क्या है टॉप एज के लिए? y1 माइनस y0। टॉप एज के लिए d क्या होता है? y1 माइनस y0 होता है, क्योंकि टॉप एज इज लाइक y का y मैक्स। y मैक्स मीन्स y1 माइनस y0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में पॉइंट कौन सा आता है आपका? पोटेंशियली लीविंग का, PL। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपने लिख दिया कि जो A है वो PE है और B है वो PL है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते ही आपको पता चल रहा है कि टाइम इंटरवल जो T की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे PE जो T की वैल्यू है, TE इज लेस देन TL। PE जो है इज लेस देन PL है, जो पॉइंट PE है इज लेस देन PL है ना। PE नीचे है और TL ऊपर है ना, तो TE इज लेस देन TL हो गया। T मतलब टाइम, जिस टाइम पे इंटरसेक्ट हुआ A पे और जिस टाइम पे इंटरसेक्ट हुआ B पे। आप देख रहे हो कि इट इज TE and it is TL and TE is less than TL, that means you will not reject your line. जब ये वैल्यू लेस देन होती है तो that means no rejection and you will compute the intersection point at TE and TL. तो इतना आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। आपने क्या बोला कि आप कंप्यूट करोगे XY की वैल्यू एट TE and TL. This is the case you have to do for line number 1. Similarly for line number 2, ये आपकी लाइन 2 है। यहाँ पे देखो, दिस इज द लाइन 2 और आप देखो कि ये जो लाइन 2 है ये इंटरसेक्ट कर रही है कौन कौन सी एज को? टॉप एज को, एक्सटेंडेड टॉप एज, ये आपकी एक्सटेंडेड है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है लेफ्ट एज को। ठीक है, ये पॉइंट निकालना कि ये PL है या PE है, ये निकालने के लिए आपको निकालना होता है नॉर्मल की वैल्यू। नॉर्मल एट टॉप, नॉर्मल एट टॉप कितना होता है? 0,1। याद है, टॉप पे y मैक्स होता है ना, तो y मैक्स इज 0,1। तो नॉर्मल की वैल्यू टॉप एज के लिए 0,1 है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि NE की जो वैल्यू आएगी ना डॉट D की ग्रेटर देन 0 आएगी। याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो कौन सी एज को इंटरसेक्ट कर रहा है? टॉप एज को कर रहा है। टॉप एज के लिए नॉर्मल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 0,1। तो ऑब्वियसली आपका NE डॉट D का जो डॉट प्रोडक्ट है विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? PL, दैट इज पोटेंशियली लीविंग। एंड जो आपको पॉइंट B है वो कौन सी एज को इंटरसेक्ट कर रहा है? इट इज इंटरसेक्टिंग, डायग्राम में देखो कौन सी एज को इंटरसेक्ट कर रहा है ये? इट इज इंटरसेक्टिंग द लेफ्ट एज। तो लेफ्ट एज के लिए आपके पास क्या होता है? एक्समिन होता है ना, -1,0। एक्समिन मतलब -1,0। तो इसको जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका NE डॉट D will be less than 0, that means it is potentially entering. अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, just look at here in the diagram. ये तो आपका PL है और ये आपका PE है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि PE जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है PL से। जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, उसकी वैल्यू बड़ी है ना PL से, दैट मीन्स जो टाइम है TE इट इज ग्रेटर देन TL। तो जब आपका TE इज ग्रेटर देन TL होता है, दैट मीन्स यू विल कंप्लीटली रिजेक्ट द लाइन। गॉट इट? जब TE इज ग्रेटर देन TL होता है, दैट मीन्स यू विल डू द रिजेक्शन। ठीक है, आपको डायग्राम में भी देख के पता चल रहा है कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पूरी बाहर है। ये आपका रेक्टेंगल है, उससे पूरी बाहर है, तो पूरी लाइन सेगमेंट को आप रिजेक्ट कर दो। क्लियर हो रहा है कुछ कि नहीं क्लियर हो रहा है? Yes class, do you able to understand? Yes, ma'am. दीपक मुझे अटेंडेंस भेज देना। कल भेजी थी? हाँ कल तो भेजी थी आपने। अटेंडेंस भेज देना मुझे। देखो हर एक लाइन सेगमेंट के लिए, अब देखो इस लाइन सेगमेंट के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट